આ શહેર તમારા મનસૂબા ઉથલાવી દે કહેવાય નહીં, આ ચહેરા પર બીજો ચહેરો ચિપકાવી દે કહેવાય નહીં. આજે કવિતાની દુનિયામાં આપણે જઈશું. મિર્ચી શામ શાનદાર सीजन 3. मिर्ची शाम शानदार एक शाम उम्मीद के नाम को पावर्ड बाय कलर्स गुजराती लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विथ हाइटा क्रॉप केयर इंडस्ट्रीज. અને આજે થોડીક મને ગમતી કવિતાઓ તમને સંભળાવીશ અને અનામિકા જોશીની કવિતાઓ પણ આપણે સાંભળીશું. ઇન ધ રિસન્ટ પાસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર આપણે જોયું છે કે સ્પોકન વર્ડ એક ખૂબ પોપ્યુલર ફોર્મેટ કે જેમાં યંગસ્ટર્સ કાવ્ય પઠન કરતા હોય છે, પોતાના મનની વાત રજૂ કરતા હોય છે. આજે હું ગુજરાતના ખૂબ જાણીતા કવિઓ જે છે એમાંથી મને ગમતા અમુક કવિઓની કવિતાઓ તમને સંભળાવવાનો છું. મારી સાથે બહુ બધા લોકો લાઈવ સેશન જોઈન કરવા માગે છે. હું ડેફિનેટલી એમની સાથે પણ વાત કરીશ, પણ એ પહેલાં માફી માગી લઉં કે શક્ય છે કે તમારા પ્રિય કવિ એમની કોઈ કવિતા હું કદાચ એનું પઠન ન કરું તો તમને ખોટું લાગી જાય, કારણ કે આજકાલ સોશિયલ મીડિયામાં બધાને ખોટા બહુ લાગતા હોય છે. તો મારા અને તમારા બંનેના ગમતા કવિ હોય એવા કવિથી હું શરૂઆત કરવું ઈચ્છતો હતો. અને મને એમ લાગે છે કે સૌમ્ય જોશી એક એવું નામ કે જેનાથી દરેક પેઢીના જે ભાવકો છે એ અત્યારે પરિચિત છે. કદાચ એવું બને કે હું ઉમાશંકર જોશીની કોઈ કવિતા પસંદ કરું અને એક જનરેશન એવી હોય જેને એમના વિશે ખ્યાલ ના હોય. કદાચ એવું બને કે હું ગની દહીંવાળા વિશે વાત કરું અથવા તો જગદીશ જોશીની કે પછી જવાહર બક્ષીની, ભગવતી કુમાર શર્માની, મકરંદ દવેની, મનોજ ખંડેરિયાની, મુકુલ ચોકસીની, મરીઝની, શૂન્ય પાલનપુરીની એમની કોઈ રચના લઉં. જેમ જેમ ફ્લો આગળ જશે એમ આપણે આમાં મન થશે એ રીતે વાત કરશું. તમે પણ તમારો પ્રતિસાદ અહીંયા આપતા રહેજો. સૌથી પહેલાં સૌમ્ય સર સાથે આત્મીયતાનો સંબંધ અને એમની કવિતાના ભાવક તરીકેનો સંબંધ. એમાં એક કવિતા આજે મેં ચૂઝ કરી છે જે અછાંદસ છે, કારણ કે પેલું સ્પોકન વર્ડમાં આજકાલ અછાંદસ ફોર્મેટ પણ ખાસું એવું પ્રચલિત છે. તો સૌમ્ય સરનો જે હું એમને વારે વારે કહેતો છું કે સર તમારું હવે નેક્સ્ટ પુસ્તક ક્યારે આવવાનું છે, કારણ કે એમણે ગ્રીન રૂમમાં જે એક સૌમ્ય જોશીની કવિતાઓનું સંપાદન એમાં થયું એ તો અદ્ભુત. અને એમાં એક આ અછાંદસ હતું, ઘઉંની ગુણ ઉપાડતા મજૂરનું અછાંદસ. ઘઉંની ગુણ ઉપાડતા મજૂરનું અછાંદસ. કેટલાક તડકા કેટલા આકરા હોય છે, કેટલાક તડકા કેટલા આકરા હોય છે. ગયાના ગયા ઉનાળે તૂટી ગયા એના ચપ્પલ. ગયાના ગયા ઉનાળે તૂટી ગયા એના ચપ્પલ હવે કચ્ચીને દાજ કાઢતી કપચી પર, કચ્ચીને દાજ કાઢતી કપચી પર છેલ્લા શેઠે પાણી ન પાયેલું ગળું લઈને, કચ્ચીને દાજ કાઢતી કપચી પર છેલ્લા શેઠે પાણી ના પાયેલું ગળું લઈને મેલા હાથની કાળી રેખાઓવાળી મુઠ્ઠીમાં સાચવેલા એડ્રેસના જોરે, મેલા હાથની કાળી રેખાઓવાળી મુઠ્ઠીમાં સાચવેલા એડ્રેસના જોરે ચશ્માવાળા કોલેઝિયને બતાવેલા રસ્તે, ચશ્માવાળા કોલેઝિયને બતાવેલા રસ્તે એ પહોંચે છે બંગલે. કચ્ચીને દાજ કાઢતી કપચી પર છેલ્લા શેઠે પાણી ના પાયેલું ગળું લઈને મેલા હાથની કાળી રેખાઓવાળી મુઠ્ઠીમાં સાચવેલા એડ્રેસના જોરે ચશ્માવાળા કોલેઝિયને બતાવેલા રસ્તે એ પહોંચે છે બંગલે. ને કમબખ્ત સૂરજ અને એના ખુલ્લા માથા વચ્ચે 2 મિનિટ માટે આવે છે ઘઉંની ગુણ. કમબખ્ત સૂરજ અને એના માથા વચ્ચે 2 મિનિટ માટે આવે છે ઘઉંની ગુણ
કેટલાક છાંયડા કેટલા ભારે હોય છે, કેટલાક છાંયડા કેટલા ભારે હોય છે. તમારી નજર સમક્ષ આખું દ્રશ્ય ઊભું થઈ જાય એવી સૌમ્ય જોશીની આ કવિતા. રમેશ પારેખનું નામ, આ 6 અક્ષરનું નામ જેણે ગુજરાતી કવિતાને એક સર્વોચ્ચ ઊંચાઈ બક્ષી. તો રમેશ પારેખની કઈ કવિતા ચૂઝ કરું? જે લોકો રમેશ પારેખની કવિતા કહી રહ્યા છે એમાંથી મને સુખ નામની એક કવિતા એમની ખૂબ ગમે છે. પછી રમેશ પારેખે એક બહુ સુંદર હાઇકુ લખ્યું છે. હાઇકુમાં 5, 7, 5નું ફોર્મેટ હોય અને એમાં એમણે લખ્યું હતું કે હું જ છબીમાં, હું જ છબીની બહાર, હું જ છબીમાં, હું જ છબીની બહાર કયો હું સાચો, હું જ છબીમાં, હું જ છબીની બહાર કયો હું સાચો. અને વાતની શરૂઆત મેં રમેશ પારેખથી જ્યારે કરી કે આ શહેર તમારા મનસૂબા ઉથલાવી દે કહેવાય નહીં, આ ચહેરા પર બીજો ચહેરો ચિપકાવી દે કહેવાય નહીં, આ સંકેતો, આ અફવાઓ, આ સંદર્ભો, આ ઘટનાઓ આખે આખો નકશો ક્યારે બદલાવી દે કહેવાય નહીં. ઘરને ઘર કહીએ તો આ ઘર એક લૂનો ચોરસ દરિયો છે, ઘરને ઘર કહીએ તો આ ઘર એક લૂનો ચોરસ દરિયો છે, ભરતી છે દરિયો શું શું ડૂબાવી દે કહેવાય નહીં. સપનાના છટક રસ્તે અહીંથી ભાગી નીકળે છે આંખો, પણ પાંપણનું ખુલી પડવું પાછી સપડાવી દે કહેવાય નહીં. દ્રશ્યો દ્રશ્યો, જંગલ જંગલ, ચશ્મા ચશ્મા, ધુમ્મસ ધુમ્મસ, રસ્તા રસ્તા, પગલું પગલું ભટકાવી દે કહેવાય નહીં. ટાવર ધબકે, રસ્તા ધબકે, અડધો પડધો માણસ ધબકે, કોનો ધબકારો કોણ અહીં અટકાવી દે કહેવાય નહીં. આ શહેર તમારા મનસૂબા ઉથલાવી દે કહેવાય નહીં, આ ચહેરા પર બીજો ચહેરો ચિપકાવી દે કહેવાય નહીં. રમેશ પારેખની ઘણી બધી એવી કવિતાઓ કે જેનું ખૂબ સુંદર સ્વરાંકન આશિષ દેસાઈએ કર્યું છે. આશિષ દેસાઈ અને હેમા દેસાઈએ ગાયા છે. જો એ ગીતો તમે ના સાંભળ્યા હોય તો ચોક્કસ સાંભળજો. મને એક પેલું બહુ ગમે છે, હાથને ચીરો તો ગંગા નીકળે, હાથને ચીરો તો ગંગા નીકળે, છેવટે એ વાત અફવા નીકળે, હાથને ચીરો તો ગંગા નીકળે. સ્તબ્ધ આંખોની કરો ખુલ્લી તપાસ, સ્તબ્ધ આંખોની કરો ખુલ્લી તપાસ, ભોંયરાઓ ભોંયરાઓ ક્યાં ક્યાં એના નીકળે. સ્તબ્ધ આંખોની કરો ખુલ્લી તપાસ, ભોંયરાઓ ક્યાં ક્યાં એના નીકળે. એ શું કબ્રસ્તાનનું ષડયંત્ર છે, ઢાંકણું ખુલે ને લાવા નીકળે. ના, એક મિનિટ શોધું. દાબડીમાં એક માણસ બંધ હોય, દાબડીમાં એક માણસ બંધ હોય, ઢાંકણું ખુલે ને લાવા નીકળે. ર નિરંતર મેષમાં સબડે અને, રમેશ પારેખની છે ને, ર નિરંતર મેષમાં સબડે અને સૂર્ય પણ નીકળે તો કાળા નીકળે. પેલો શેર હું ભૂલી ગયો, એ શું કબ્રસ્તાનનું ષડયંત્ર છે, એ ભૂલી ગયો શેર. પણ આવી તો રમેશ પારેખની તો ગજબ રચનાઓ જે કમ્પોઝ કરી છે આશિષભાઈએ, અને બીજા ઘણા બધા લોકોએ કમ્પોઝ કરી છે. જો તમને સુગમ સંગીતમાં રસ હોય તો ચોક્કસ આ ગીતો સાંભળવા. હવે આ થોડું હેવી થઈ ગયું તો આપણે લાઇટ ઉપર જઈએ. મુકેશ જોશીની અમુક આ દીપ ખત્રી શું લખે છે, બંધ પરબીડિયામાં મરણ મળે તમને. હા, બહુ સરસ. રમેશ પારેખની બંધ ના, હા
હા, બંધ પરબીડિયામાં મરણ મળે તમને, બચી શકાય તો બચવાની ક્ષણ મળે તમને. બંધ પરબીડિયામાં મરણ મળે તમને, બચી શકાય તો બચવાની ક્ષણ મળે તમને. પહેલા તો ગળામાં એક છિદ્ર મળે, પહેલા તો ગળામાં એક છિદ્ર મળે, પછી તૃષા, પછીથી ઝરણ મળે તમને. આ કેવો શ્રાપ છે આ કવિતામાં, તો ગજબ. પહેલા તો ગળામાં એક છિદ્ર મળે, પછી તૃષા, પછીથી ઝરણ મળે તમને. ટપાલ થઈ તમે ઘેર ઘેર પહોંચો અને, ટપાલ થઈ તમે ઘેર ઘેર પહોંચો અને સમસ્ત શહેરના લોકો અભણ મળે તમને. ટપાલ થઈ તમે ઘેર ઘેર પહોંચો અને સમસ્ત શહેરના લોકો અભણ મળે તમને. બચી શકાય તો બચવાની ક્ષણ મળે તમને. આશિતભાઈ નું એક કોમ્પોઝિશન પેલું પણ મને બહુ ગમે છે. માણસ ઉર્ફે રેતી ઉર્ફે દરિયો ઉર્ફે ડૂબી જવાની ઘટના ઉર્ફે. નયન દેસાઈ ની આ કવિતા. માણસ ઉર્ફે રેતી ઉર્ફે દરિયો ઉર્ફે ડૂબી જવાની ઘટના ઉર્ફે. ઘટના એટલે લોહી, એટલે વહેવું, એટલે ખૂટી જવાની ઘટના ઉર્ફે. માણસ ઉર્ફે રેતી ઉર્ફે દરિયો ઉર્ફે ડૂબી જવાની ઘટના ઉર્ફે. ઘટના એટલે લોહી, એટલે વહેવું, એટલે ખૂટી જવાની ઘટના ઉર્ફે. ખુલ્લી બારી જેવી આંખો ને આંખોમાં દિવસો ઉગે ને આથમતા. દિવસો મતલબ વેઢા, મતલબ પંખી, મતલબ ઉડી જવાની ઘટના ઉર્ફે. પગમાંથી પગલું ફૂટે ને પગલામાંથી રસ્તાના કઈ રસ્તા ફૂટે. પગમાંથી પગલું ફૂટે ને પગલામાંથી રસ્તાના કઈ રસ્તા ફૂટે. રસ્તા અથવા ફૂલો, રસ્તા અથવા ફૂલો અથવા પથ્થર અથવા ઉગી જવાની ઘટના ઉર્ફે. વજ્જરની છાતી ના પીગળે, આંસુ જેવું પાંપણને કંઈ અડકે તો પણ. વજ્જરની છાતી ના પીગળે, આંસુ જેવું પાંપણને કંઈ અડકે તો પણ. આંસુ એમાં શૈશવ, એમાં કૂવો, એમાં કૂદી જવાની ઘટના ઉર્ફે. આહા, આંસુ એમાં શૈશવ, એમાં કૂવો, એમાં કૂદી જવાની ઘટના ઉર્ફે. ચાલો સૌ આ સંબંધોની વણજારોને બીજે રસ્તે વાળી દઈએ. ચાલો સૌ આ સંબંધોની વણજારોને બીજે રસ્તે વાળી દઈએ. સંબંધો શમણાના ઝુમ્મર ઝુમ્મરિયાને ફૂટી જવાની ઘટના ઉર્ફે. સંબંધો શમણાના ઝુમ્મર ઝુમ્મરિયાને ફૂટી જવાની ઘટના ઉર્ફે. માણસ ઉર્ફે રેતી ઉર્ફે દરિયો ઉર્ફે ડૂબી જવાની ઘટના ઉર્ફે. ઘટના એટલે લોહી, એટલે વહેવું, એટલે ખૂટી જવાની ઘટના ઉર્ફે. નયન દેસાઈની આકૃતિ. ક્રિશ કે છે, આહા ધંતુ લવ યુ ટુ. ધંતુ નામથી મને કેટલા વર્ષો પછી કોઈએ બોલાવ્યો. જ્યારે રેડિયો કરિયરની શરૂઆત થઈ હતી ત્યારે હું રેડિયો પર એવું કહેતો હતો કે હું છું અમદાવાદનું સૌથી તોફાની જંતુ, મારું નામ છે ધ્વનિત એટલે કે ધંતુ. ઓકે, બીજા કયા કવિની કવિતા તમારે સાંભળવી છે? કોઈ મનમાં તમારા નામ આવતું હોય તો મને ચોક્કસ કહેજો. હું મુકેશ જોશી ની વાત કરવા જઈ રહ્યો હતો. મુકેશ જોશી નું એક ગીત મને ખૂબ ગમે છે. ખોટું ન લાગે તો એક વાત કહું, હું થોડા દિવસ હવે તારામાં રહું. આ કેવી કેવી સરસ મજાની વાત છે. ખોટું ન લાગે તો એક વાત કહું, હું થોડા દિવસ હવે તારામાં રહું. કામમાં હશે તો હું વાત નહીં માંડું, મૌનમાં કોઈ દી છાંટા ના ઉડાડું. સમણાનો કાયદો હાથમાં ન લઉં, હું થોડા દિવસ હવે તારામાં રહું. મજાની વાત છે. હમણાં કોઈએ ખલીલ ધનતેજવી નું નામ લખ્યું. ખલીલ સાહેબ, એમને આપણે આ વર્ષે કોવિડમાં ગુમાવ્યા અને 85ની એજમાં, મારા ખ્યાલથી એપ્રિલ મહિનામાં ખલીલ ધનતેજવી સાહેબ આપણી વચ્ચેથી વિદાય થયા. ગુજરાતી મુશાયરામાં ખૂબ મોખરાનું નામ, ખૂબ પ્રખર કવિ આપણા. પણ એમણે જે ઉર્દુમાં જે ગઝલો લખી એમાં એક એમની કલમ ખૂબ ખીલી ઉર્દુમાં પણ. અને એમાં સૌથી વધુ પ્રસિદ્ધ રચના જગજીતસિંહ ના કંઠે, કદાચ જો તમે સાંભળી હોય તો એ ગઝલ, અબ मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ. अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूँ, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूँ.
इतनी महंगाई के बाजार से कुछ लाता हूं, इतनी महंगाई के बाजार से कुछ लाता हूं, अपने बच्चों में उसे बांट के शर्माता हूं। अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूं, अपनी नींदों का लहू पोंछने की कोशिश में, अपनी नींदों का लहू पोंछने की कोशिश में जागते जागते थक जाता हूं, सो जाता हूं। कोई चादर समझ के खींच ना ले फिर से खलिल, मैं कफन ओढ़ के फुटपाथ पे सो जाता हूं। अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं। બહુ જ બધા લોકો જે મેસેજ કરી રહ્યા છે, લેટ મી જસ્ટ રીડ ધેમ આઉટ. ઓકે, સો પૂનમ, પ્રિયા, હિરલ, દીપ, રૂપલ, નીપા, થેન્ક યુ. રાવજી પટેલ, અસીમ રાંદેરી, બધા સરસ મજાના નામ લોકો લઈ રહ્યા છે. વાહ ભાઈ વાહ. ચલો, મને જાણીને આનંદ થયો કે ગુજરાતી કવિતાને માણનારા આટલા બધા લોકો છે જે મારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પણ છે. સો बिफोर आई टॉक मोर अबाउट गुजराती पोएट्स, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातें अनामिका के साथ भी करते हैं. अनामिका बत्तों की बकवास इस नाम का उनका इंस्टा हैंडल है और काफी इंटरेस्टिंग बातें करती हैं ये, तो उनसे भी कुछ बातचीत की जाए. मरीज साहेबनो शेर को तुषारभाई शुक्ल, कवि दलपतराम, राजेश व्यास, मिस्किन, अच्छा બધા નામ લોકો લખી રહ્યા છે, બહુ સરસ, क्या बात है. ओके, हेलो. हाय, हेलो, नमस्कार, हाय, नमस्ते. कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर हैविंग. बस बढ़िया. मैं आपको सुन रही थी हाँ. और मुझे दुख हो रहा था कि मुझे गुजराती नहीं आती है. अरे मतलब सीरियसली इतने रस लेकर आप सुना रहे थे, बहुत मजा आ रहा था, सुनने में ही मजा आ रहा था, मैं वैसे ही मजे ले रही थी. थैंक यू, थैंक यू. गुजराती भाषा जो है उस वो फोनेटिकली बहुत मीठी भाषा है. तो हाँ. अगर किसी को समझ में नहीं भी आता है फिर भी कानों को अखरता नहीं. कभी कभी भाषा कुछ ऐसी होती है ना, जो शब्द काटते हैं तो आपको हाँ. वो शब्द जो है वो कानों को अखरते हैं. गुजराती में ऐसा नहीं होता. गुजराती थोड़ी सॉफ्ट हाँ. लैंग्वेज है, तो सुनने में बड़ा फोनेटिकली मजा आता है जी. तो आप ऐसी बात रखती हैं कि आप माँ को भी ये कह देती है कि माँ तुम कभी गलत हो सकती हो. आप पापा को भी ये कह देती हैं कि पापा आप एक बार बस पापा बनना छोड़ दो. और आप वहां तक भी जाती हैं कि आप हस्बैंड से ये कह देती है कि आखिर तुम होते कौन हो. जी जी जी. तो ये आपने अलग अलग रिश्तों पे ये जो तोहमतें लगाई है उसके बारे में आज बातें करते हैं. तो शुरुआत करते हैं आपकी जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही स्पोकन वर्ड पोएट्री जो है आखिर तुम होते कौन हो. इसके कितने मिलियन, अब कितने व्यूज हैं ये आपके यूट्यूब पे? मेरे एक्चुअली ये साहित्य प्रोजेक्ट ने इसको शूट किया था, जो प्लेटफॉर्म था जी. तो मुझे एक्चुअली मैंने लेटेस्ट देखा नहीं है अभी कितना है उसमें, लेकिन काफी तो ज्यादा वो शेयर हुई है. हाँ, मतलब उसको है व्यूज है, माँ तुम भी गलत हो सकती हो के बराबर व्यूज है उनके जो है, तो मिलियंस में है. वेरी नाइस. तो एक बहुत मुझे सोशल मीडिया की एक बात जो अच्छी बहुत लगती है वो ये है कि हर कोई अपनी बात बेबाक तरीके से रखता है और उस बात को समझने वाला एक वर्ग, हर किसी को अपना अपना वर्ग मिल जाता है, हर किसी को अपनी एक ऑडियंस मिलती है. तो ये बिल्कुल ये इसे भाषा की मतलब आई एम लिबर्टी ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है ऑफ कंटेंट. हाँ. 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 राइट. और मैंने देखा है कि लोग पूछते हैं कि कविता अच्छी कैसे लिखें, तो मैं उनको कहती हूँ कि आप अच्छी नहीं लिख सकते, आप बिल्कुल ऑनेस्ट कविता लिख सकते हो और फिर आप देखिए कि कौन लोग हैं जो आपसे रिलेट कर पा रहे हैं. राइट. मतलब आपको आपका जोन पकड़ना है. आप ऐसे ये सोचकर नहीं लिख सकते कि मैं एक अच्छी कविता लिखने बैठूंगा या बैठूंगी, यू नो.
तो वो इस कविता के साथ हुआ। मतलब मैं थोड़ा आउट ऑफ वो पैरामीटर एक होता है ना, एक ब्रैकेट जो होता है, उससे थोड़ा बाहर जाने की कोशिश की और उसकी भी ऑडियंस मिल गई। वेरी मतलब नाइस। ये बहुत कमाल की बात थी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की शाम आपके रंग से। तो जो सबसे एकदम मुखरित है उससे उससे बात करते हैं, चलिए। ठीक है, तो आखिर तुम होते कौन हो सुनाती हूँ। इससे पहले मैं एक छोटी सी पीछे की कहानी बताती हूँ, पोयम के हम्म, पीछे की कहानी। तो हम्म, मैं जब कोई पोयम लिखने ऐसे नहीं बैठती कि चलो आज इस पे पोयम लिखने बैठते हैं, वो आजकल होता है, लेकिन शुरू में मेरी जर्नी में ऐसा नहीं था। शुरू में बहुत रैंडम मेरा लिखने का प्रोसेस था। तो एक दोस्त था जिसकी शादी होने वाली थी, और वो अपनी टू बी वाइफ के बारे में बात कर रहा था। हम्म, एंड बात ऐसे हो रही थी कि देखो हमारे यहाँ ये अलाउड होगा, ये चीज अलाउड नहीं होगी, और ये तो हम उसको करने देंगे लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। तो वो एक बहस में कन्वर्ट हो गई। मतलब मैं अपना पॉइंट रखने की कोशिश कर रही थी कि भाई ये अलाउ कहाँ से आ गया, और वो अपना पॉइंट रख रहा था कि यार परिवार में तो एडजस्टमेंट जरूरी है। तो मैंने 2 कदम पीछे ले लिए, क्योंकि मुझे समझ में आया कि ये बहस नहीं कर सकते आप इस पे, क्योंकि ये बहुत एक लेयर्ड टॉपिक है और आप इसको बातों में नहीं समझा सकते। कमाल की बात यह है कि घर जब तक पहुंची तो उसी दोस्त का मैसेज आया कि तू इस पे कुछ लिख, जो अपन बात कर रहे थे इस पे कुछ लिख। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई जिसके अगेंस्ट में कुछ टॉपिक में बात कर रही थी वही बोल रहा है, तो कुछ तो बात होगी कि जो हम्म, उसको समझ में आई है। हम्म, तो ये कविता वहां से शुरू हुई है, और इसका शीर्षक हमने पूरी कविता लिख ली थी उसके बाद में दिया था। हम सोच रहे थे कि क्या दें, और फिर ये दिया था। देखो तुम मना नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मान जाते हो। अब ये जो 2 पहली लाइन है ना, ये मुझे ऐसे सोफे पे लेटे लेटे आ गई थी। बाकी कविता मैंने बैठ के बढ़ाई है। ये 2 कविता मेरी स्टार्टिंग है। देखो तुम मना नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मान जाते हो। जब तुम साड़ी के बदले सूट पहनने देते हो और बोलते हो कि अरे हम तो बड़े दिल वाले हैं, घूंघट नहीं निकालोगी तो चलेगा, बस मांग भर लेना और हाथों में एक एक चूड़ियां पहन लेना, इससे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। बड़ों की 4 बात मान लोगी तो क्या पहाड़ टूट जाएगा। और फिर तुम अपना प्यार कुछ ऐसे जताते हो कि मुझे मेरे ही अधिकारों का दायरा समझाते हो। तुम मुझे बाहर जाने देते हो, नौकरी करने देते हो, देर से भी उठने देते हो, अपना नाम बनाने देते हो, और कभी कभी तो नौकरी भी करने देते हो, और बस देते ही जाते हो। और क्योंकि साथ जिंदगी भर का है, तो मैं भी एडजस्ट हो जाती हूँ और एडजस्ट होती ही चली जाती हूँ। तो बस वहीं पर हम सब हार जाते हैं। तो बस वहीं पर हम सब हार जाते हैं, क्योंकि कौन पूछे तुमसे कि ये देने वाले आखिर तुम होते कौन हो। कौन पूछे तुमसे कि ये देने वाले आखिर तुम होते कौन हो। कौन हो तुम जिसकी इजाजत बाय डिफॉल्ट लेनी चाहिए। कौन हो तुम जो खुद को ये अधिकार दे बैठा है कि जो मैं दे रहा हूं बस वही तुम्हारा है। तो जो मैं हूं, थी और हो सकती हूं, उसके पन्ने तो फाड़ ही देने चाहिए। क्योंकि जब मैं पलट के देखूंगी तो मैं होंगी ही नहीं, मैं तो वो होंगी जो तुमने मुझे बनने दिया। दोबारा दोबारा। क्योंकि क्योंकि जब मैं पलट के देखूंगी तो मैं होंगी ही नहीं, मैं तो वो होंगी जो तुमने मुझे बनने दिया। मैं जिसको सूट नहीं स्कर्ट पसंद है, जो चूड़ी को जंजीर मानती है, जो रस्मों को नकारती है, जिसको आरती गाने की आदत नहीं पर सम्मान का अर्थ जानती है, उसको तुम अपने हिसाब की दुनिया का पाठ पढ़ाओगे। रोज 2 कॉलम में दे सकने और नहीं दे सकने वाले मेरे अधिकार मुझे समझाओगे, और खुद बन जाओगे बड़े दिल वाले। और खुद बन जाओगे बड़े दिल वाले, क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो बड़े नसीब वालों को मिलता है। तुमने मुझे वो दिया जो बड़े नसीब वालों को मिलता है। जैसे कि तुम जो हफ्ते में एक बार नाश्ता बनाकर इतराते हो, मेरे घर वालों को फोन करके मुझे जताते हो, और अगर किसी दिन कर लेते हो घर की सफाई तो मान ही लेते हो कि बेस्ट हस्बैंड की ट्रॉफी तो मिल ही जानी चाहिए। मान ही लेते हो कि बेस्ट हस्बैंड की ट्रॉफी तो मिल ही जानी चाहिए। लेकिन तुम तो वो अवतार हो जो 16 सोमवार के बाद भी कोई नहीं पा सकता। तुम तो वो अवतार हो जो 16 सोमवार के बाद भी कोई नहीं पा सकता। पर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मुझे मिल गए। देखो दूसरों को कैसे कैसे मिल जाते हैं, और मैं भी इसी भ्रम में रह जाऊंगी कि मुझे इतना देने वाला मिल गया। मैं इस भ्रम में रह जाऊंगी कि मुझे इतना देने वाला मिल गया। मैं भूल जाऊंगी कि ये हक तो मैंने कभी किसी को दिया ही नहीं था।
मेरी जंजीर की ताकत तय करने वाले तुम नहीं, मैं खुद थी। और मेरे चारों ओर कोई लकीर थी ही नहीं जो अब तुम बनाने चले हो। मेरे चारों ओर कोई लकीर थी ही नहीं जो अब तुम बनाने चले हो। मेरे पंख का साइज और ऑल्टीट्यूड तुम्हारे दायरे में नहीं आता। बहुत अच्छे। मेरे मेरे पंख का साइज और ऑल्टीट्यूड तुम्हारे दायरे में नहीं आता, वैसे ही जैसा तुम्हारा मेरे। अगर आता है तो वो है एक दूसरे का साथ, और अगर साथ कंडीशन सप्लाइड के साथ आता है तो वो साथ नहीं, हिसाब किताब है। साथ अगर कंडीशन सप्लाइड के साथ आता है तो वो साथ नहीं, हिसाब किताब है। और माफ करना, हिसाब किताब में थोड़ी कच्ची हूं, दिल से अभी भी बच्ची हूं। माफ करना, हिसाब किताब में थोड़ी कच्ची हूं, दिल से अभी भी बच्ची हूं। मेरी उड़ान ही मेरी पहचान है। इसे मैं सूट पहन के भरूं या साड़ी, इससे कैसे जुड़ गया तुम्हारा सम्मान है। मुझे किसी ऐसी डोर से न बांधना जिसकी पकड़ तुम्हारे हाथ हो, बल्कि ऐसी डोर से बांधना जिसमें हमारी उड़ान में एक दूसरे का साथ हो। और ये टू वे रास्ता है। ये मैं एक तरफा बात नहीं कर रही हूं, ये टू वे रास्ता है। मेरे रेस्पेक्ट के मायने मेरे कपड़े, रस्म और श्रृंगार से न जोड़ना। मेरे रेस्पेक्ट के मायने मेरे कपड़े, रस्म और श्रृंगार से न जोड़ना। और मेरे खाना बनाने की स्किल्स को मेरे संस्कारों से न मोड़ना। ये मेरे शौक भी हो सकते हैं, इन्हें कंपलसरी सब्जेक्ट मत बनाना। ये मेरे शौक भी हो सकते हैं, इन्हें कंपलसरी सब्जेक्ट मत बनाना। और बाकी मैं संभाल लूंगी, तुम ज्यादा मत घबराना। बाकी मैं संभाल लूंगी, तुम ज्यादा मत घबराना। लास्ट में उनको थोड़ा वो भी करना था ना। तो इस कविता का कोई इम्पैक्ट, कोई फीडबैक, किसी की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा फर्क आया हो, किसी ने आपसे कुछ पर्सनल बात शेयर की हो जो शायद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनका नाम लेके ना कर सके, लेकिन अगर कोई किस्सा आप बता सके कि ये कविता जब लोगों तक पहुंची तो उससे किसी की जिंदगी संवर गई, सुधर गई। बहुत प्यारे रिस्पॉन्स आया ध्वनि, मतलब आज तक भी आता है मुझे। और किसी पोयम पे इतना रिस्पॉन्स नहीं आता जितना आखिर तुम होते कौन पे आता है। और बहुत पर्सनल चीजें लोग शेयर करते हैं, मतलब कि मैंने हस्बैंड के साथ शेयर की तो हस्बैंड गुस्सा हो गए। और कई लोग ये बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये पोयम भेजी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और बहुत मुझे बुरी बुरी चीजें भी सुनने को मिली है, घर तोड़ने वाली, आग लगाने वाली। और बहुत, आप मतलब आप कमेंट्स सोचिए जो बुरे कमेंट्स हो सकते हैं, और वो मुझे खूब भर भर के मिले हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अच्छे कमेंट्स भी मुझे मेल काउंटर पार्ट से मिले हैं जितना फीमेल से मिले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ने ही सराहा है, बहुत सारे मेल्स हैं जिन्होंने बोला कि थैंक यू फॉर सेइंग दिस एंड वी विल ट्राई टू डू बेटर। मतलब वो होता है ना, मैं ना हमेशा ही कहती हूँ कि आप बुरे इंसान को अच्छा बना सकते हो, पर जो ये मान के बैठा है कि मैं अच्छा हूं, आप उसको अच्छा नहीं बना सकते। जो ये मान के बैठा है कि मैं तो बहुत कर रहा हूं और क्या करूं, इससे ज्यादा क्या करूं, उसको आप वो दीवार तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। तो ये वाइफ के लिए भी तोड़ना मुश्किल है। जब हस्बैंड हफ्ते में एक बार बर्तन मांज देता है तो वाइफ ये नहीं कह पाती कि ये काफी नहीं है, क्योंकि वाइफ को ये बोला गया है कि इतना कर रहा है बहुत है। तो वो मेंटली जो ब्लॉक है, वो वाइफ उसको नहीं कह सकती कि भाई ये एक बार से क्या होगा, क्योंकि उसको ये बोला जाएगा कि तुम्हें तो ये भी नहीं सही लग रहा, मतलब तुम्हें इतना मिल रहा है तुम उसमें भी उंगली उठा रहे हो। तो मुझे लगता है कि फीमेल्स को ये तसल्ली मिली कि फाइनली हम जो कहना चाह रहे हैं, मतलब हम जो नहीं बोल पा रहे थे या हमें एक रेस्ट्रिक्शन थी बोलने के लिए, वो एक कविता के रूप में उनको मिल गई जो अब वो शेयर कर सकते हैं। मतलब एक आसान होता है कि जब एक स्ट्रेंजर कोई बात पे डिस्कस कर रहा होता है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करना आसान होता है। तो मुझे उस तरीके के कमेंट्स बहुत मिले कि थैंक यू वाले। वो मैं ना बहुत इमोशनल कमेंट्स भी आते हैं मुझे, मैसेजेस आते हैं कमेंट से ज्यादा। और कई लोगों को लगता है कि मैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ बिकॉज आई रॉट दिस पोएम, विच इज लाइक आई डोंट नो हाउ टू टेल देम दैट आई कांट, Right. कि बट या दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द पोएम No, I इन द understand. लॉन्ग रन। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात जो मुझे ऐसा लगता है पिछले कुछ समय से हमारी सोसाइटी में देखने मिल रही है, वो ये है कि आर्ट के जरिए ये जो हमारे समाज के जो ऐसे डाकर पहलू हैं जिन्हें हम कहीं अपने चद्दर के पीछे या पर्दे के पीछे छुपा के रख देते हैं,
जैसे थप्पड़ नाम की एक फिल्म आती है और वो एक मतलब एक कितना सही मुद्दा, सटीक मुद्दा छेड़ जाती है, कितनी बारीकी से छेड़ती है वो। और उसी तरह से द ग्रेट इंडियन किचन नाम की एक फिल्म आई है, आई एम नॉट श्योर आपने देखी है Oh, कि नहीं। no, I have seen it. I have seen it. अरे, It's amazing. तो It's मुझे ऐसा amazing. लगता है कि हर वो लड़का जो शादी करने जा रहा है, जो शादी या अभी अभी उसकी शादी हुई है, उसे तो ये फिल्म देखनी ही चाहिए, द ग्रेट इंडियन सही। किचन, जो मलयालम फिल्म है और मेरे ख्याल से इस वक्त प्राइम पे अवेलेबल है क्या, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, प्राइम पे है शायद। तो जो या फिर आपकी जो कविता है वो, तो एक बहुत अच्छी बात है ना कि सही मायने में उड़ान जो है, जिसे आपने ऑल्टीट्यूड से नापा, तो एक एक आकाश पूरा प्रदान करते हैं ये आर्ट के अलग अलग पहलू। मुझे लगता है अनकंफर्टेबल जब कोई चीज आपको करती है ना, तो वो दो तरीके से करती है। या तो वो आपको रिपल्सिव लगेगी, मतलब आप इतना अनकंफर्टेबल हो जाओगे कि आप आगे नहीं बढ़ोगे या पूरी नहीं सुनोगे, जैसे थप्पड़ मूवी के साथ हुआ। मुझे कई लोग पता है जो मूवी 15-20 मिनट देख के छोड़ दी थी, क्योंकि जिन्होंने कि अनकंफर्टेबल, यार ये तो बिल्कुल। अनकंफर्टेबल हो जो गए। आपने कहा कि अगर वाइफ ने हस्बैंड को ये पोएट्री आपकी भेजी, वीडियो भेजा और हस्बैंड गुस्सा हो गए, वो गुस्सा एक्चुअली गुस्सा नाराजगी इसलिए क्योंकि वो अनकंफर्टेबल है, वो सहन नहीं कर पाते, उनकी खुद के हाँ, कुरूप को वो देख नहीं पाते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, तो वो मुझे लगा, एक तो वो थी और एक दूसरी ये थी कि जिन्होंने डटकर पूरा देखा, चाहे वो फिल्म हो या पोएम हो या कोई सा भी आर्ट फॉर्म हो, उन्होंने पूरा समझने की कोशिश की, एंड देन उसमें से 20% ही सही अपने अंदर उतारा। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि सबको तो नहीं चेंज करेगी, पर अगर 5% को भी चेंज करेगी और एक पोएम है जिसने किया है, तो इस आर्ट फॉर्म को मतलब वो रेस्पेक्ट मिलती है कि हाँ, पोएम कैन डू थिंग्स विच यू कांट कॉन्वर्स, राइट। तो चलिए इसी पोएम को थोड़े से और नजरिए से भी देखते हैं। जैसे मुझे आपकी पोएम में सीक्रेट सुपरस्टार वाला हस्बैंड दिखता है। सीक्रेट सुपरस्टार हाँ, फिल्म अगर किसी ने देखे तो वो हस्बैंड भी आपकी पोएम में रिफ्लेक्ट होता है। और उसी तरह से यही चीज कभी कभी घर के अलग अलग रिश्तों में भी रिफ्लेक्ट होती है। इट इज नॉट ओनली अबाउट हस्बैंड, इट्स अबाउट अ मदर इन लॉ, इट्स अबाउट अ फादर, इट्स अबाउट अ पेरेंट्स, इट्स ऑल्सो अबाउट पेरेंट्स, एग्जैक्टली। और आपने अलग अलग रिश्तों के लिए अलग अलग बातें अपनी रखी है। तो लेट्स टॉक अबाउट द पोएट्री दैट यू रिटन अबाउट अ फादर। एक पिता को आपने जो कहा है कि पापा आप कुछ देर के लिए पापा बनना छोड़ दो बस, मतलब आप इतना पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हो, तो वो बहुत अच्छी है, वो भी जरूर, बिकॉज इट गिव्स अ ट्रिब्यूट टू ऑल द फादर्स हु आर ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस एंड इनसाइड दे आर सो वल्नरेबल। ट्रू ट्रू ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि जो रिश्ते होते हैं ना, जो एक भगवान वाले रिश्ते, जो माँ बाप के रिश्ते होते हैं, या कोई भी ऐसे रिश्ते ले लो जिनको आप एक पेडेस्टल पे बिठाते हो, वो एक भारीपन के साथ आते हैं। मतलब उसमें एक हैवीनेस होती है जो हम एड्रेस नहीं करते हैं एवरीडे में। हमें लगता है ये उनकी जिम्मेदारी है, ये तो उनको करना ही चाहिए, या फिर ये वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये उनको भी पता है, पर वो आप अगर यही बोल देना कि हमें पता है कि आप बोझ उठा रहे हो, तो भी वो हल्का महसूस करेंगे, या एड्रेस करने से ही हल्कापन आएगा। तो पापा बनना छोड़ दो इसी के ऊपर थी कि पापा मैं ग्लोरीफाई कर सकती हूँ, पर मैंने सोचा यार ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। ग्लोरिफिकेशन से भी एक उसका भार बढ़ता जाता है जी। तो शीर्षक है पापा बनना छोड़ दो। सुनो पापा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, पर आप बस एक बार के लिए पापा बनना छोड़ दो। वो पैसों की तंगी बता दो हमें, वो साइकिल नहीं दिला सकते समझा दो हमें। ऐसे घर लेट मत आया करो, ऑफिस में 4 घंटा एक्स्ट्रा मत बिताया करो। ये दो दो दुनिया कैसे संभाल लेते हो, अंदर कुछ बाहर कुछ कैसे बन पाते हो। सुनो पापा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बस आप एक बार के लिए पापा बनना छोड़ दो। माई पापा स्ट्रॉन्गेस्ट के बोझ तले मुस्कुराना बंद करो। क्यों नहीं कह देते कि बस अब नहीं होगा, देख लो सब अपना, नहीं होगा पूरा किसी का सपना। बस जूझते से रह जाते हो और झुंझलाते हुए न जाने हमसे
क्या क्या छुपाते हो, और बेवजह सीरियस होने का टाइटल ले जाते हो। सुनो पापा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बस आप एक बार के लिए पापा बनना छोड़ दो। जोक भी सुनाते हो, शॉपिंग भी कराते हो, घुमाने भी ले जाते हो, घर को घर बनाकर रखने में अपना दिन रात भूल जाते हो। अच्छी पढ़ाई, अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छी लाइफ, इन सबके बीच अपना बुरा सा बुरा वक्त भी हमसे छुपाते हो। और जब मन उबाल खाने लगता है तो सिगरेट के धुएं में गुम से हो जाते हो। सुनो पापा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बस आप एक बार के लिए पापा बनना छोड़ दो। अरे, कुछ साल पहले की ही तो बात है, जब आप पापा नहीं थे तो कैसे दोस्तों के साथ वक्त बिताते थे। बॉस से बहाना बनाकर ले लद्दाख घूमने जाते थे। अब घूमने नहीं जाने का बहाना बनाते हो, घर में ही सुकून मिलता है कहकर अपनी खुशी टाल जाते हो। हम सबको साथ लेकर चलने में शायद कभी कभी अकेले से पड़ जाते हो। अपना एक खर्चा दबाकर हमारे 10 नखरे उठाते हो। सुनो पापा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आप बस एक बार के लिए पापा बनना छोड़ दो। मैं जानती हूं आप नहीं छोड़ोगे, हंसोगे, गाल पे थपकी दोगे और बोलोगे, अरे पागल। और मैं भी बस गले लग जाऊंगी कसकर। ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी, ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगी, बस चुप सी हो जाऊंगी, जैसे आप हो जाते हो। हैप्पी फादर्स डे पापा। न जाने आप ये सब कैसे कर पाते। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। थैंक यू, थैंक यू। तो इतने सारे लोग होंगे इस वक्त जो ये आपका जो एक्सप्रेशन है उसे अपने अंदर लेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और अपने पापा को याद करेंगे। और एक जो प्यार का अंदर से उबाल आएगा इस वक्त ये पोएट्री के बाद, वो अनपैरेलल है, ब्यूटीफुल। इसकी प्यारी बात पता है क्या है ध्वनित, मुझे ना पापाओं के कमेंट आते हैं। हाँ? मतलब इस पोएम के नीचे ना ऐसे 70-year-old 75-year-old इनके कमेंट्स आते हैं। और कई बार ऐसा हुआ है कि बेटियां या बेटे पापाओं को टैग करते हैं और नीचे फिर पापा लोग उनका रिप्लाई देते हैं, और मैंने कई स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हैं। मतलब ये ना बड़ी प्यारी सी फीलिंग है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये करेंसी है अपनी, ये तो यही है जो है। यही तो कमाई है यार, यही तो कमाई है, यही है। हाँ, यही कमाई है कि आप किसी की जिंदगी में कुछ ऐसा छोड़ के जाएं जो उनकी जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत बनाए। तो मैं हमेशा इतना सही। हाँ, मैं हमेशा ही मानता हूँ कि मान लीजिए आज हम ये जो बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत के बाद जो सुन रहा है उसे ये होना चाहिए, अरे अच्छा वक्त बीता। हाँ, राइट। उसे अच्छापन महसूस होना चाहिए खुद के बारे में, दुनिया के बारे में। कुछ ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये वक्त सही था, आई फेल्ट एनरिच्ड। तो ये बिल्कुल आपकी जो पोएट्री है वो एनरिचिंग है। और इसी तरह से मैं मानता हूं कि आने वाले समय में भी आप इतना ही बेहतरीन काम करते रहें। न सिर्फ आपके जैसे जितने भी क्रिएटर्स हैं जो क्रिएशन के जॉय के लिए काम करते हैं, they work for the sheer joy of creation, they want to create some meaningful stuff। उन सभी को सैल्यूट। बिल्कुल बहुत प्यारे लोग हैं इस फील्ड में, स्पोकन वर्ड में, आर्टिस्ट की फील्ड में। मतलब अभी कुछ भी हो रहा होता है ना तो हमारे ग्रुप है पोएट्स का, तुरंत वहां आता है कि यार एक छोटा सा शो करते हैं, जो पैसा आएगा वो अपन इस फैमिली को दे देंगे, उस फैमिली को दे देंगे। सो दे आर लाइक, उनको पता है कि शो में भी कोई नहीं आने वाला है। मतलब वो हमने 3,000 इकट्ठे करके दिए हुए हैं ध्वनित। हमने शो किया, 11-12 लोग थे, 100 रुपए की टिकट थी या 150 की समथिंग थी, उसमें भी लोग नहीं आए। तो जितने इकट्ठे हुए ना वो भी हमने दिए, लेकिन 3,000 भी दिए तो हम बड़े खुश थे कि अरे भाई। तो एक है ना, आपने पता नहीं सीरीज देखी है कि नहीं, आफ्टर लाइफ करके, कभी आप देखना तो बहुत प्यारी सी बात है एक, है ना, कि एक इंसान बोलता है कि इतने दुख हैं दुनिया में, है ही क्या, मतलब क्या कर लोगे आपके दुख कम हो जाए। मतलब क्या मतलब है जिंदगी का जब इतने दुख हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो।
तो एक लेडी है, वो जवाब देती है कि आपका काम सबके दुख खत्म करना नहीं है, आपका काम है आपके कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड को काइंड बनाना। राइट। मतलब आप अपने कोने का हिसाब रखिए, बाकी सब अगर अपने अपने कोने का रखेंगे तो काफी है। जी। तो ये जो आप कर रहे हैं या और पोएट्स या आर्टिस्ट कर रहे हैं, वो अपना अपना कोना संभाल रहे हैं, वो 3,000 हो, 300 हो या 3 रुपए हो, बस वो भी बहुत होता है उस कोने के लिए। तो हम मुझे लगता है यही है। हम 360 डिग्रीज में से 1 डिग्री संभाल लेते हैं, बाकी बस 359 जो है वो दुनिया संभालती रहेगी, हम उस पर भरोसा रखते हैं। मुझे बस आप बात कह रही थी ना, और ये पापा वाली कविता का जिक्र हो रहा था, तो मुझे फारूक शेख साहब की एक फिल्म याद आ गई। फिल्म थी 90s क्लब 90, ऐसा कुछ नहीं, क्लब 60 नाम है उसका। और अच्छा, मैंने नहीं देखी। और ओके। रघुवीर यादव है उसमें, शरद सक्सेना है अच्छा। मेरे ख्याल से। बहुत ही बेहतरीन फिल्म, सारिका जी, फारूक शेख। ओके। क्लब 60 नाम की एक फिल्म है, जब कभी वक्त मिले तो आप देखें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अनामिका जोशी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और थैंक यू ध्वनित। शेयर करने के लिए। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बाय। थैंक यू, बाय बाय। સો આઈ હોપ યુ એન્જોયડ ધીસ સેશન. આવા બીજા સેશન્સ પણ આપણે ચોક્કસ કરીશું. ઘણા બધા લોકોએ શરૂઆતમાં મેન્શન કર્યું હતું કે પહેલા પ્રેમની અથવા તો મજાની લાઈફમાંથી કંઈ સંભળાવો. જો ગીતોનો સેશન આપણે અલગ ક્યારેક કરીશું, આજે માત્ર કવિતા વિશે વાત કરવાની હતી, એટલે હું મારી જાતને સોંગ્સથી વેગળો રાખીને અથવા તો કાવ્ય સંગીત, સુગમ સંગીતથી થોડા દૂર જઈને માત્ર કવિતાઓ વિશે વાત કરી રહ્યો હતો. કોઈની રિક્વેસ્ટ હોય તો જોઈએ. જલન માત્રી સાહેબનું નામ કોઈએ વચ્ચે લીધું હતું. આઈ થિંક ખલીલ ધનતેજવી સાહેબનું નામ જ્યારે લીધું ત્યારે. ઓકે, સો આઈ વિલ એન્ડ વિથ જલન માત્રી સાહેબ સાથે મને અમેરિકા ફરવાનો લાવો મળ્યો હતો. વિનોદ ભટ્ટ, જલન માત્રી, બધાની સાથે અમે લોકો અમેરિકામાં જ્યારે ચાલો ગુજરાત માટે ગયા હતા વર્ષો પહેલા, 2008ની વાત છે મારા ખ્યાલથી, 2008 કે 2009માં. ખૂબ એટલે ખૂબ આનંદ કર્યો હતો. અને એમની એક ગઝલ મને ખૂબ ગમે છે. જલન માત્રી સાહેબ આમ વિદ્રોહી શાયર, એટલે એમણે કેવું ગજબ લખ્યું હતું. રહસ્યોના પડદા ઉપાડી તો જો, રહસ્યોના પડદા ઉપાડી તો જો, ખુદા છે કે નહીં હાક મારી તો જો. રહસ્યોના પડદા ઉપાડી તો જો, ખુદા છે કે નહીં હાક મારી તો જો. પલાઠી લગાવીને ના બેસી રહે, પલાઠી લગાવીને ના બેસી રહે, તું મુઠ્ઠીઓ વાળીને ભાગી તો જો. હશે તો ઉઠી દોડવા માંડશે, હશે તો ઉઠી દોડવા માંડશે, તું પ્રારબ્ધને લાત મારી તો જો. હશે તો, આ તો કેવી ગજબ આજે, હશે તો ઉઠી દોડવા માંડશે, તું પ્રારબ્ધને લાત મારી તો જો. ખબર તો પડે મોતીઓ છે કે નહીં, સમંદરમાં ડૂબકી લગાવી તો જો. છે મીઠા કે ખારા સમજ તો પડે, જલન ઝાંઝવાઓને ચાખી તો જો. રહસ્યોના પડદાઓ ઉપાડી તો જો. આ પણ આશિષભાઈ સરસ કમ્પોઝ કરી. રહસ્યોના પડદાઓ ઉપાડી તો જો, ખુદા છે કે નહીં હાક મારી તો જો. રહસ્યોના પડદાઓ ઉપાડી તો જો. આવું જ મને યાદ નથી, બહુ વર્ષો પહેલા સાંભળ્યું હતું એમનું કમ્પોઝિશન. આઈ થિંક. થેન્ક યુ વેરી મચ એવરીબડી ફોર જોઈનિંગ ઇન. તમારી કોઈ રિક્વેસ્ટ હોય, કોઈ ફીડબેક હોય તો ડેફિનેટલી પહોંચાડજો. ધીસ ઇઝ મિર્ચી શામ શાનદાર સીઝન 3. આના અલગ અલગ એપિસોડ્સ તમે બીજા બધા આરજેસ ની સાથે પણ જોઈ શકો. કુનાલની સાથે, મોહિનીની સાથે બીજા અલગ અલગ સેશન્સ પણ થઈ રહ્યા છે. સો આઈ હોપ યુ વોચ ધોઝ સેશન્સ એઝ વેલ. મિર્ચી ગુજરાતી ના પ્લેટફોર્મ પર તમને મિર્ચી શામ શાનદાર सीजन 3 માણવા મળી રહી છે. ये शाम उम्मीद के नाम को पावर्ड बाय कलर्स गुजराती, लाइफ इंश्योरेंस पार्टनर LIC. LIC जैसे इम्यूनिटी के लिए वैक्सीन, वैसे इंश्योरेंस के लिए LIC in association with Haita Crop Care Industries. Save crop with Haita Care. Thank you.